Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Week. This is Amrita, your law faculty at iExamB. आज के इस वीडियो में हम लोग UGC नेट एग्जामिनेशन फॉर लॉ जो कि अभी अभी कंडक्ट हुआ है ऑन 16th of June 2023 उसके बारे में बात करने वाले हैं. We will be discussing the different type of questions that were asked in this examination from paper 1 as well as from paper 2, and also we will try to find out the weightage that has been given to different topics in this paper this time. NTA has conducted this examination and अब इसका डिफ़िकल्टी लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. तो हम लोग इसका भी एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल को हमें कैसे ट्रैक करना है, बट इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे. So don't forget to subscribe to LegalBee and watch this video till the end. If you have any queries, you can write to us in the comment section of this video. Reach out to us anytime through email also on hello@iexamb.com या फिर आप इस नंबर पे directly call कर सकते हैं 9205524028 and also visit our website www.iexamb.com. UGC NET examination June. The law पेपर वॉज कंडक्टेड इन सेकेंड शिफ्ट ऑन 16th of June 2023. तो उसका एनालिसिस हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे. बट उससे पहले आई वुड लाइक टू गिव यू एन अपडेट अबाउट द सेबी ग्रेड ए लीगल ऑनलाइन कोर्स दैट इज अवेलेबल एट iExamB. अगर आप इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, डू गो एंड चेक द डिटेल्स ऑन द वेबसाइट एज वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर एट iExamB. If you require any other details of any other examination which you are preparing for after law, then you can check out our website and check all the details of the courses that are available for judiciary, for SEBI, for RBI, IBPS, RRB, IBPS, SO. ये सारे courses के details आप check कर सकते हैं. So what were the key takeaways of this examination? First of all, the examination level was moderate level this time. एंड इस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझ में आती है दैट टाइम मैनेजमेंट इज द की इन दिस एग्जामिनेशन. इफ़ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम वेल, you can qualify this examination. Even if you are having good amount of knowledge but you are not able to manage your time, then you cannot qualify this examination. आप कितने भी attempts दे दो. So इसके लिए आपको practice करना होगा papers, mock tests. आपने iExamB के website पर free mock tests check नहीं किए होंगे तो आप वो भी check कर सकते हैं and उसको solve करके देख सकते हैं अगर आप दिसंबर के एग्जाम के लिए भी prepare कर रहे हैं तो. So time management is very very important in this examination. Lengthy questions are asked. They are trying to check your ability to solve these questions. Twisted questions are asked, and time is something which is very very crucial over here. That's why. Next, paper 1 was tough this time. This was the majority reviews that I have got. Paper 1 was tough. Paper 2 was moderate this time. जैसे लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था December 22 का, जो अभी कंडक्ट हुआ था मार्च में, उसमें पेपर 2 यानी कि लॉ काफ़ी टफ था और क्वेश्चंस काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे. बट आज के पेपर में पेपर 2 जो है, जो लॉ का पेपर है, वो मॉडरेट था. हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इजी था, वो तो कभी हो नहीं सकता यूजीसी नेट के एग्जाम में. एंड इट वाज नॉट वेरी टफ आल्सो बिकॉज कुछ क्वेश्चंस वर समथिंग विच वाज एक्सपेक्टेड एंड वर डूएबल आल्सो. So that was moderate, but paper 1 was tough. The reason being that the questions that were asked were actually twisted. वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे. एंड टाइम मैनेजमेंट का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो इस बार का कट ऑफ हम लोग मॉडरेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मॉडरेट एग्जाम था, मॉडरेट कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पेपर 1, the questions that were asked, data interpretation was again in tabular form. Generally tabular form में ही होता है. And comprehension was there. One comprehension passage was there from the European Union policies. यानी कि उससे जो इकोनॉमी और जो environment पे जो अफेक्ट हो रहा है बेसिकली उससे रिलेटेड एक पैसेज दिया गया था. इंडिया, यूरोपियन यूनियन, डेवलपिंग कंट्रीज, इस रिलेटेड एक पैसेज था, डूएबल पैसेज था. लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे गए थे, दैट वर ऑल्सो मॉडरेट. 1 was based on fallacy and 2 were general statement based questions from logical reasoning. Age related problems were there from maths. Then number series, you have to find the missing number, you have to identify the pattern. ये तो हर बार पूछते हैं वो लोग. ये सब आपको ना प्रैक्टिस से डेवलप करना होता है, पेपर 1 का ये पार्ट. Then higher education, there were 2 questions around. Direct questions were there. Comparatively, it was okay as compared to the logical reasoning part. And the environment, people development and environment, teaching aptitude और ICT, जो कि थोड़े easy topics माने जाते हैं,
उन क्वेश्चंस को उन्होंने काफ़ी ट्विस्ट करके पूछा था। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे, जैसे एनवायरनमेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम सबको पता है कि इजी टॉपिक है, बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड जो उन्होंने क्वेश्चन बनाया था वो काफ़ी डिफिकल्ट था। एक तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था एंड वो था भी डिफिकल्ट, कोई ज़्यादा ईजी नहीं था। सो इस तरीके से उन्होंने पेपर 1 को टफ बनाया था। दैट्स वाई द स्टूडेंट्स वर शैटर्ड कि इतने कम टाइम में हम कैसे ये सब सॉल्व करें, क्वेश्चंस भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। दैट वाज द प्रॉब्लम एंड दैट इज द मेन चैलेंज इन दिस एग्जामिनेशन। पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो लॉ में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे? 2 कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस वर गिवन। वन वाज फ्रॉम रूल ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दैट वाज ओके मॉडरेट। वन वाज इजी कॉम्प्रिहेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। उसके क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो आपने अगर पैसेज नहीं भी पढ़ा तो आप क्वेश्चन देख के भी सॉल्व कर सकते हो। सो दैट वाज ओके। रूल ऑफ लॉ वाला पैसेज मॉडरेट था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, इट वाज ओके। मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। इसमें से काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़े अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे। एंड स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिस रिलेटेड वो थोड़े इजी थे, जैसे ओपिनियन की डेफिनेशन पूछ ली, इस तरीके के। आईपीआर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इतने क्वेश्चंस आईपीआर से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जनरली, बट बहुत सारे क्वेश्चंस थे आईपीआर से। एंड वन क्वेश्चन वाज रियली वेरी डिफरेंट बिकॉज इट वाज फ्रॉम कॉपीराइट। मतलब आपको पता है कि कॉपीराइट का टेन्योर जो होता है, लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स। सो ये उन्होंने एक सॉल्व एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया था, वो आपको सॉल्व करना था। उन्होंने 5 कंडीशंस दी थी, 5 कंडीशंस में अलग अलग डेट्स दिए थे, उसको आपको सॉल्व करना था कि हर एक इसका टर्म कितना है कॉपीराइट का, एंड देन यू हैड टू अरेंज दैट इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपको सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े टर्म तक जाना था, यानी कि वो अरेंजमेंट आपको था। तो इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। एंड होता क्या है, हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज द मेन चैलेंज एक्चुअली दैट वाज देयर एंड दैट हैज मेड द पेपर डिफिकल्ट। इसलिए यहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्विंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। इवन लॉ में उन्होंने वही किया था। ज्यूरिस्प्रूडेंस से डायरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड, बुक ऑथर रिलेटेड क्वेश्चन जैसे हमेशा आते हैं वैसे थे, बट काफी क्वेश्चन थे ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी। फैमिली लॉ से, हिंदू सक्सेशन एक्ट से 2 to 3 क्वेश्चंस वर देयर। जनरली वो मुस्लिम लॉ पे अगर ज़्यादा फोकस करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट पे, बट इस बार उन्होंने साथ में हिंदू सक्सेशन एक्ट से भी 2-4 क्वेश्चंस पूछ लिए थे। मुस्लिम लॉ 2 क्वेश्चंस लाइक इद्दत से, ऐसे मतलब वो तो एक्सपेक्टेड ही है। हिंदू मैरिज एक्ट 2 क्वेश्चंस वर देयर। Then tort law, the questions were comparatively easy. We can do it in less time also. Tort law was also covered. Many questions were covered. Then match the pair related questions were also there from tort. IPR से भी match the following related questions. Case law based question थे match the following में. Then in constitution DPSP से related match the following में questions थे. So ये doable था, लेकिन कुछ parts ऐसे थे, अभी जैसे ये topics हैं जो उन्होंने crux पकड़ा था, public international law, human rights, IPR, jurisprudence, थोड़ा सा static part है. So this was actually somewhat challenging for some students. जो students ने ये अच्छे से पढ़ा था उनके लिए ये पेपर easy था। जो जिन्होंने इन पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था पेपर। एंड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 1 or 2 or 3 मे बी क्वेश्चंस वर देयर। सो दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस दैट आई हैड फ्रॉम यूजीसी नेट लॉ एग्जामिनेशन दैट वाज कंडक्टेड 16th of June। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं या फिर आपको कोई क्वेश्चंस को ऐड करना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लीगल बी, प्रिपेयर 50% फास्टर विद आई एग्जाम बी। Thank you everybody.